Good morning. In my last class, I have already completed your first chapter. That is living world. So all are directed to seriously study your reference or prescribed book. If any doubt arises, you may call me in my phone number or you may message it in your WhatsApp number. The last class रे already तुम्हारा first chapter living world complete कर देजी तुम ड्यूटी है बही को थोरली पढ़ो तुम जे अच्छी रेफरेंस बुक बा प्रेस्क्राइब्ड बुक ताको लाइन बाय लाइन पढ़ जार जहाँ डाउट आसुम मेसेज कर मु आज जे तुम इवनिंग रे तो डाउट क्लास करी काली पुणी भी ए वीक रे तुम डाउट है मु डाउट क्लास ने भी ऑनलाइन ले तो तुम समस्ते थोरली बही रे पढ़ पुणी तुम देख रेफरेंस बुक रो से चैप्टर एंड रे गुड़ाए क्वेश्चन देछि से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जी मेडिकल क्वेश्चन मिनिमम 10 इयर्स रो मेडिकल क्वेश्चन देछि ता तुम सॉल्व करो जो क्वेश्चन तुम न करि पारछो से क्वेश्चन मते पचार मु तुमको डिटेल्स बुझेबी तो इन माय टुडे क्लास आई विल डिस्कस द सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. It is the second chapter of biology. Biology book रो first chapter complete है जी. एबे आसो second chapter पढ़िबा that is classification of living organisms. So regarding classification of living organisms, I may say at first the systematic classification of living organisms was proposed by Carolus Linnaeus in the year 1735. Linnaeus in his Systema Naturae book classified living organisms into two kingdoms. That is called two kingdoms classification of living organisms. It was proposed by Carolus Linnaeus. Actually, though so many scientists in pre-Christian era and post-Christian era classified living organisms, however, the first systematic classification of living organisms was proposed by Carolus Linnaeus. That is called two kingdoms classification of living organisms. मन रखिबो actually first systematically living organism रो classification करथिले Carolus Linnaeus. That is called two kingdoms classification of living organisms. In his classification, Linnaeus classified all living organisms into two kingdoms. One is the plant kingdom, other one is the animal kingdom. Linnaeus in his two kingdom classification classified all living organisms into two kingdoms. One is the plant kingdom, other one is the animal kingdom. In plant kingdom he placed such organisms which possess chlorophyll pigments. That means which can perform photosynthesis process, means their mode of nutrition is autotrophic type and their cells possess cell wall and they do not perform locomotion. रिव्यू कर कथाटा देख आउ रिमाइंड कर दूसरी आम बर्तमान बायोलॉजी रो सेकंड चैप्टर पढ़ुचे. चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड first systematic classification of living organisms was proposed by Carolus Linnaeus. Linnaeus in his classification system classified all living organisms into two kingdoms, plant kingdom and animal kingdom. Linnaeus living organisms मान को दीटा kingdom करछन्ती, गोटे हला plant kingdom आ गोटे हला animal kingdom. In plant kingdom Linnaeus placed such organisms which have chlorophyll pigments, whose mode of nutrition is autotrophic type, whose cells possess cell wall and which do not perform locomotion. Further, he placed such organisms in animal kingdom which have no chlorophyll pigments, which have no cell wall in their cells, whose mode of nutrition is heterotrophic type and which perform locomotion process. कथा रिव्यू करू देखो. प्रथमे सिस्टमेटिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो क्लासिफिकेशन करथिले लिनियस. Linnaeus proposed करथिले two kingdom classification. According to Linnaeus, living organisms are of two different types, plants and animals. Linnaeus placed all the living organisms into two kingdoms.
वन इज प्लांट किंगडम अदर वन इज एनिमल किंगडम लिनियस लिविंग ऑर्गेनिज्म रो दीटा किंगडम करछंती प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म मान को से दीटा किंगडम रखिछंती प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम रे से रखिछंती सेही ऑर्गेनिज्म मान को जहां क्लोरोफिल पिगमेंट अछि जो मान मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक टाइप जहां सेल रो सेल वाल बा कुश भित्ति अछि जहां लोकोमोशन बा चलन प्रक्रिया हुएनी तो देखो लिनियस प्लांट किंगडम रे सेही ऑर्गेनिज्म मान रखछंती बा प्लांट किंगडम रे जो ऑर्गेनिज्म अछन ताकर कैरेक्टर हैला प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोफिल बा हरित कणिका प्लांट मानकर अछि एनिमल्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट्स एनिमल मानकर क्लोरोफिल पिगमेंट नाही ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोफिल थिबा जो प्लांट फोटोसिंथेसिस बा आलुगोश्लेषण प्रक्रिया करे henceforth plants are autotrophs means the mode of nutrition of a plant is autotrophic or holophytic type similarly animals have no chlorophyll pigments hence all the animals are heterotrophic in nature all animals are heterotroph or parabhoji then plant cell possess cell wall plant cell ro प्रथम देखो एटा लेट प्लांट सेल ये एनिमल सेल प्लांट सेल रो क्लोरोफिल सॉरी प्लांट सेल रो आउटर मोस्ट कवरिंग दा सेल वॉल बिलो हुई सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन कोश झिल्ली एनिमल सेल रो किंतु सेल वॉल नाही खाली सेल मेम्ब्रेन अछि प्लांट सेल प्रथम सेल वॉल अछि तातरको सेल मेम्ब्रेन अछि एनिमल सेल रो सेल वॉल नाही खाली सेल मेम्ब्रेन अछि प्लांट सेल रो सेंट्रल पोर्शन ले वैक्यूल था एनिमल सेल वैक्यूल नहीं प्लांट सेल रो क्लोरोप्लास्ट बा हरितलपक अछि एनिमल सेल नहीं तो प्लांट सेल रो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल ता तळु को अछि सेल मेम्ब्रेन द आउटर कवरिंग इज सेल वॉल बिलो व्हिच सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बट इन केस ऑफ एनिमल सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट then another character of plant is plant perform locomotion process animals do not perform locomotion process plant रो locomotion बा चलन प्रक्रिया हुए animal रो हुए नहीं तो यही क्राइटेरिया अनुसार लिनियस classified all living organisms into two kingdoms plant kingdom and animal kingdom okay then nowadays this two kingdom classification has been discarded एबेका समय रे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को आमे रिजेक्ट कर देइछु डिस्कार्ड बा रिजेक्ट कर देइछु तमे कहबार टू किंगडम क्लासिफिकेशन को काहे रिजेक्ट करा गला त डिमेरिट कोन ना तर एक नंबर डिमेरिट हैला टू किंगडम क्लासिफिकेशन रो एक नंबर डिमेरिट हैला इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम माइक्रोब्स आर नॉट प्रॉपर्ली ग्रुप्ड microbes or अणुजीव microorganisms are not properly classified in this classification system for example euglena गोटे microorganism euglena गोटे microorganism it possesses chlorophyll pigments euglena रा chlorophyll pigment अछि and its mode of nutrition is autotrophic type तमाने यूग्लिना को हमें प्लांट किंगडम प्लेस करबा अच्छा यूग्लिना रो सेल वॉल नाही एवं से लोकोमोशन करि पारे तमाने तो एनिमल किंगडम रखिया तमाने देखो यूग्लिना प्लांट रो भी कैरेक्टर देखौची एनिमल रो भी कैरेक्टर देखौची यूग्लिना रो प्लांट सेल परिका क्लोरोफिल पिगमेंट अछि यूग्लिना ऑटोट्रोफ तमाने से प्लांट कैरेक्टर देखौची यूग्लिना रो किंतु सेल वॉल नाही सेल वॉल इज एब्सेंट यूग्लिना लोकोमोशन करि पारे एटा फ्रेश वाटर रे रुए यूग्लिना is a microorganism. It is commonly living in freshwater pond, pool, ditches, etc. Euglena is a microorganism, अणुजीव. Euglena shows character of both plants and animals. को two kingdom classification रे Euglena को हमें क्यों kingdom रखिया? ये plant रो character देखो जी, animal रो character देखो जी. Commonly Euglena को कहती connecting link between plant and animal. Euglena को कहा जाए connecting link between plant and animal. मते कुह टू किंगडम क्लासिफिकेशन ले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान को प्रॉपर्ली प्लेस करा है जी यूग्लिना पई कोनसी पोजीशन अछि की ये तो प्लांट कैरेक्टर देखो जी ये एनिमल कैरेक्टर देखो जी तो आको एक कंट्रोवर्सी नो डाउट अराइज करछि आको हम प्लांट किंगडम रखिबा ना एनिमल किंगडम रखिबा आको नै कंट्रोवर्सी क्रिएट होछि तो एमिति अनेक ए फंजी मान कर देखो फंजी मान कर क्लोरोफिल पिगमेंट इज एब्सेंट किंतु सेल रो सेल वॉल अछि
तमाने फंजी पाए आप ए टू किंगडम क्लासिफिकेशन रे कौन सी व्यवस्था नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान को ये आदु प्रॉपर्ली प्लेस करा है henceforth टू किंगडम क्लासिफिकेशन हैज बीन रिजेक्टेड तो इट इज ऑल अबाउट टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखो डिमेरिट है टू किंगडम क्लासिफिकेशन ले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम्स करा है प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम रे प्लांट्स मान को रखा जाय एनिमल किंगडम रे एनिमल को रखा जाय तो ये क्लासिफिकेशन डिमेरिट बा त्रुटि बा फॉल्ट कौन टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिमेरिट मीन्स त्रुटि है इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम माइक्रोब्स आर नॉट प्रॉपर्ली प्लेस्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यूग्लिना गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लांट कैरेक्टर देखा एनिमल कैरेक्टर भी देखा क्यों किंगडम रखा कंट्रोवर्सी क्रिएट होची तो जेहेतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान को प्रॉपर्ली ग्रुपिंग करा जायनी henceforth टू किंगडम क्लासिफिकेशन हैज बीन रिजेक्टेड टू किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कराई तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हला परे यार्स्ट हैकेल in the year 1866 classified all the living organisms into three kingdoms so let us discuss three kingdom classification of living organisms heading karo three kingdom classification three kingdom classification proposed by Ernst Haeckel in the year 1866 three kingdoms classification of living organisms proposed by Ernst Haeckel in the year 1866 Haeckel in his classification system classified all the living organisms into three kingdoms. Number one is the Protista kingdom. Number two, plant kingdom. Number three, animal kingdom. Ernst Haeckel classified all the living organisms into three kingdoms. Number one is Protista kingdom. Number two, plant kingdoms. Number three, animal kingdoms. Ernst Haeckel classified all the living organisms into three kingdoms: Protista kingdom, plant kingdom, animal kingdom. Haeckel placed all the unicellular microorganisms all the unicellular microorganisms in kingdom Protista. He placed all the multicellular plants in plant kingdom and all multicellular animals in animal kingdom. Haeckel classified all the living organisms into three kingdoms: Protista kingdom, plant kingdom, animal kingdom. Haeckel placed all the unicellular microorganisms in Protista kingdom, all the multicellular plants in plant kingdom, all multicellular animals in animal kingdom. कथा रिव्यू करछु देखा टू किंगडम क्लासिफिकेशन रो डिमेरिट एराइज कला परे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया हला देन Ernst Haeckel लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान को क्लासिफाई कले थ्री किंगडम्स को ताको क्लासिफिकेशन को कहा जाए थ्री किंगडम्स क्लासिफिकेशन तो Haeckel लिविंग ऑर्गेनिजम मान को थ्री डिफरेंट किंगडम्स को कैटेगराइज कले केमती ना ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचर जते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अछंदी ताको से रखिले प्रोटिस्टा किंगडम रे सब मल्टीसेलुलर प्लांट्स मान को रखिले प्लांट किंगडम रे मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रखिले एनिमल किंगडम रे तो Haeckel लिविंग ऑर्गेनिजम को थ्री किंगडम्स गले प्रोटिस्टा किंगडम प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम
क्लासिफिकेशन को कहुए थ्री किंगडम्स क्लासिफिकेशन। ओके, तो ए क्लासिफिकेशन डिमेरिट अच्छी, डिमेरिट त्रुटि फल्ट तुम कह पार कौन डिमेरिट ना डिमेरिट है सी जो नुआ गोटे किंगडम क्रिएट कले प्रुटिस्टा, तो जो प्रुटिस्टा टर्मटा इंट्रोड्यूस कर हेकेल। प्रुटिस्टा टर्म वाज फास्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हेकेल। प्रुटिस्टा इन ओडिया आदि जीव ए टर्मटा से इंट्रोड्यूस करते। तो से जो प्रुटिस्टा किंगडम यूनिसेलुलार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखिंट से यूनिसेलुलार माइक्रो ऑर्गेनिज्म भितर किसी अच्छा प्रोकारियोटिक किसी अच्छा यूकारियोटिक। प्रोकारियोटिक मीन्स प्राक्नेस्टियो, यूकारियोटिक मीन्स सुनेस्टियो। रिमाइंड कर दो देख लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी रो स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। सेल इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। The cell which has a well organized nucleus is called eukaryotic cell. The cell whose nucleus is incipient type is called prokaryotic cell. कथा रिव्यू करछु देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी रो स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। सेल दी प्रकार रो जो सेल रो ट्रू न्यूक्लियस नाही तुम कह पार न्यूक्लियस कौन सेल रो टोटल जेनेटिक मटेरियल बा डीएनए जोठी गैदर ही थांती से जगह को कहते न्यूक्लियस। सेल रो जो पोर्सन रे सेल रो समस्त डीएनए बा जीन थाए से पोर्सन को कहते न्यूक्लियस। सेल रो जो पोर्सन ले टोटल डीएनए बा जीन थाए से पोर्सन को कहते न्यूक्लियस। ओके, तो जो न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रान अछि ए सेल देख एटा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रान थिबो न्यूक्लियर लॉस थिबो न्यूक्लियस भितर डीएनए गुडी को हिस्टोन प्रोटीन सहित मिसिकी क्रोमोसोम होइकी थिबे। जो सेल रो न्यूक्लियर मेम्ब्रान थिबो न्यूक्लियर लॉस थिबो न्यूक्लियस भितर थिबा डीएनए गुडी को हिस्टोन प्रोटीन सहित मिसिकी डीएनए गुडी को हिस्टोन प्रोटीन सहित मिसिकी क्रोमोसोम होइकी थिबे से सेल को कहंती यूकारियोटिक सेल। शून्यष्टीय कोष यूकारियोटिक सेल। जो सेल न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रान नाही, न्यूक्लियर मेम्ब्रान इज एब्सेंट, न्यूक्लियर लॉस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस पर्सन केवल नेकेड डीएनए अछि केवल हिस्टोन फ्री नेकेड डीएनए हिस्टोन प्रोटीन नथिबा नेकेड डीएनए अछि नेकेड डीएनए से कहते प्रोकारियोटिक सेल। प्राक्नेस्टिय कोष प्रोकारियोटिक सेल। सेल इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स प्रोकारियोटिक सेल यूकारियोटिक सेल। जो सेल रो न्यूक्लियर मेम्ब्रान नाही न्यूक्लियर लॉस नाही न्यूक्लियस पर्सन केवल नेकेड डीएनए अछि कहते प्रोकारियोटिक सेल। जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रान अच्छी न्यूक्लियर लॉस अच्छी न्यूक्लियस भितर डीएनए गुडी हिस्टोन प्रोटीन सहित मिसिक अछंती। जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रान बा न्यष्टि झिल्ली अच्छी निन्यष्टि बा न्यूक्लियर लॉस अच्छी डीएनए गुडी हिस्टोन प्रोटीन सहित मिसिक क्रोमोसोम होइक अछंती कहते यूकारियोटिक सेल। जो सेल न्यूक्लियस पर्सन केवल नेकेड डीएनए अच्छी खाली नेकेड डीएनए अच्छी कहते प्रोकारियोटिक सेल। इन नेचर three different organisms have prokaryotic cells. They are bacteria, blue green algae and mycoplasma. मन रखिथिबो नेचर रे थिबा ऑर्गेनिज्म रु थ्री डिफरेंट टाइप रो ऑर्गेनिज्म मानकर केवल प्रोकारियोटिक सेल से माने हेले बैक्टीरिया बा बीजाणु ब्लू ग्रीन एल्गी आउ माइकोप्लाज्मा एई मानकर प्रोकारियोटिक सेल। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म्स हैव यूकारियोटिक सेल्स। थ्री डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैव प्रोकारियोटिक सेल बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। तो देखो हेकेल ताको क्लासिफिकेशन सिस्टम रे ऑल प्रोकारियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड ऑल यूकारियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को प्लेस करचंदी प्रोटिस्टा किंगडम रे। हेकेल सबु यूनिसेलुलर प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा किंगडम रखछन। त माने हेकेल जो प्रोटिस्टा किंगडम रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखछंती ताको किछ अछन यूनिसेलुलर प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया इत्यादि किछ अछन यूनिसेलुलर यूकारियोटिक प्रोटोजोआ जो एमोइबा इत्यादि तो सेमान से रखछन गुटिया किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम रे। एटा हला मेन डिमेरिट सेति पई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया आइछ। तो तुम रिमाइंड कर दो देखो फर्स्ट लिनियस लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को टू किंगडम को कैटेगराइज कले तार डिमेरिट अछि से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करी नाहांती। तापर हेकेल यार्स्ट हेकेल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को थ्री किंगडम्स को कैटेगराइज कले। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन डिमेरिट हैला थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन मन रखिथिबो हेकेल गोटे नुआ किंगडम क्रिएट कले प्रोटिस्टा टर्म हेकेल इंट्रोड्यूस करथिले।
प्रोटिस्टा किंगडम रे से सब यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर सॉरी यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक एज वेल एज यूनिसेलुलर यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म को रखछन्ती त माने किंगडम प्रोटिस्टा रे हेकेल प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म को रखछन्ती यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म को रखछन्ती एई डिमेरिट जुगु थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ओके ताक सब लेखिनियो आर डिमेरिट जानला तो आर डिमेरिट हैला जे प्रोटिस्टा किंगडम रे से सब यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा को रखिछन्ती ता सहित यूनिसेलुलर यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म एककोषी जीव जार सुन्यष्टि अछि ए जो एमुइबा इत्यादि प्रोटोजोआ मान भी रखिछन्ती ता माने यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूनिसेलुलर यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म को से रखि गुटिए किंगडम रे प्रोटिस्टा किंगडम रे सेति भाई ए क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया जायछि मींस रिजेक्ट कर दिया जायछि ओके देन लेट अस डिस्कस फोर किंगडम्स क्लासिफिकेशन four kingdom classification proposed by Kingdom 1 Monera, Kingdom 2 Tista, Kingdom 3 Meta, Beta, Meta, Joa. Four kingdom classification was proposed by Copeland, Copeland, Copeland in the year 1955. Copeland. In four kingdom classification, living organisms are classified into four different kingdoms. Number one, Monera. Number two, Protoctista. Number three, Metaphyta. Number four, Metazoa. It is Metazoa. Copeland classified all the living organisms into four kingdoms. Copeland placed all the unicellular prokaryotic organisms in Monera kingdom. Unicellular prokaryotes. Nature थिबा organism भितर जो माने unicellular prokaryotic organism. यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म को रखछन्ती मोनेरा किंगडम रे देन यूनिसेलुलर यूकार्योट्स को रखछन्ती प्रोटोक्टिस्टा किंगडम रे मल्टीसेलुलर प्लांट्स मेटाफाइटा मल्टी सेलुलर एनिमल्स मेटाजोआ देखो बाबू कोपलैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फोर डिफरेंट किंगडम्स करछन्ती यथा मोनेरा प्रोटोक्टिस्टा मेटाफाइटा मेटाजोआ नेचर थिबा और लिविंग ऑर्गेनिजम भितरु जो ऑर्गेनिजम गुड को यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक मींस जो ऑर्गेनिजम मान सेल भितर ट्रू न्यूक्लियस नाही माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही न्यूक्लियर लॉस नाही न्यूक्लियस पोर्शन ले केवल नेकेड डीएनए अछि प्रो जो माने प्रोकार्योटिक बा प्रैक्नेस्टियो एग्जांपल बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा जो माने ट्रू न्यूक्लियस नाही जो माने प्रोकार्योटिक तांको से रखछन्ती किंगडम मोनेरा रे
देन जो ऑर्गेनिज्म गुड़िक यूनिसेलुलर यूकारियोटिक तार होती प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटोक्टिस्टा किंगडम मल्टीसेलुलर प्लांट्स को मेटाफाइटा मल्टीसेलुलर एनिमल को मेटाजुआ तो ये है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आर डिमेरिट है जेठी फंजी मान को प्लांट किंगडम रखा जाए मेटाफाइटा मेटा माने बड़ फाइटन माने प्लांट मेटा मीन्स लार्जर फाइट मीन्स प्लांट मेटा मीन्स लार्जर जून मीन्स एनिमल तो कोपलैंड फंजी को प्लेस कर मेटाफाइटा बा प्लांट किंगडम रे यही डिमेरिट जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन रिजेक्टेड तापर नेक्स्ट क्लास को तुम पढ़ेबी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।